अमेरिका की प्रोस्पेरिटी के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा और यहां से अमेरिका का डिक्लाइन खत्म होता है और अब अमेरिका गोल्डन एरा की तरफ आगे बढ़ेगा। With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. First, I will declare a national emergency at our southern border. तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे बॉर्डर पर। उन्होंने साफ कह दिया है कि नेशनल इमरजेंसी। तो घुसपैठ को लेकर ट्रंप कितने सख्त हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल देखिए, स्टैंडिंग ओवेशन यहां पर मिल रहा है। घुसपैठ की समस्या अमेरिका के लिए कितनी बड़ी हो चुकी थी, उनकी जीत में इस ऐलान ने बड़ी भूमिका निभाई थी। घुसपैठियों को लेकर, इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर जो उनकी सोच थी उसको लेकर उन्हें काफी सराहा गया था। तो आज उन्होंने अपनी इस मेडन स्पीच में भी ऐलान कर दिया है कि इस घुसपैठ को रोकूंगा और इमरजेंसी सॉवरेन बॉर्डर पर ऐलान कर रहे हैं। We will reinstate my remain in Mexico policy. मैक्सिको बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। Practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. साउदर्न बॉर्डर में वो कह रहे हैं वो ट्रूप्स भेजेंगे। तो कितना सख्त उनका रवैया है। Orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. मैक्सिको बॉर्डर पर सेना भेजेंगे, साफ उन्होंने कर दिया है। इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है मैक्सिकन बॉर्डर पर, तो अपने इरादे साफ कर दिए। Invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities. As Commander-in-Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going to do. We will do it at a level that nobody's ever seen before. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down NDTV के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ ने भी डोनाल्ड ट्रंप को 47वें राष्ट्रपति के तौर पर sworn करने पर बधाई दी है। Congratulations, Mr. Donald Trump, on being sworn as 47th President of United States. The people of India and the United States share the same democratic ideal, values, and people look forward to strong ties of friendship during your second term in office. साथ ही उन्होंने JD Vance को भी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ लेने पर बधाई दी है। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा जी ने डोनाल्ड ट्रंप को 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने पर, कार्यभार संभालने पर बधाई दी है और कहा है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के जो नागरिक हैं वो सेम डेमोक्रेटिक आइडियाज हैं, वैल्यूज हैं और हम साथ मिलकर एक मजबूत दोस्ती की उम्मीद रखते हैं आपके सेकेंड टर्म में ऑफिस and export American energy all over the world. We will be a rich nation again, and it is that liquid gold under our feet that will help to do it. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate, saving our auto industry and keeping my sacred pledge to our great American auto workers. In other words, you'll be able to buy the car of your choice.
We will build automobiles in America again at a rate that nobody could have dreamt possible just a few years ago. And thank you to the auto workers of our nation for your inspiring vote of confidence. We did tremendously with their vote. I will immediately begin the overhaul of our trade system to protect American workers and families. तो ट्रेड सिस्टम को भी वो रिवैल्यूएट करेंगे और जिस तरह से उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अमेरिका के जो लोकल बिजनेस है उसको बढ़ावा मिले, इसके लिए वो इंपोर्ट टैक्सेस जो हैं, टैरिफ्स जो हैं, उनको बढ़ाएंगे. For this purpose, we are establishing the External Revenue Service to collect all tariffs, duties, and revenues. It will be massive amounts of money pouring into our treasury, coming from foreign sources. The American dream will soon be back and thriving like never before to restore competence and effectiveness to our federal government. My administration will establish the brand new Department of Government Efficiency. तो अमेरिका को एक बार फिर से समृद्ध बनाएंगे, पूरी दुनिया में अमेरिका का सम्मान होगा. After years and years of illegal and unconstitutional federal efforts to restrict free expression, I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. तो अमेरिका में फ्री स्पीच की वकालत वो कर रहे हैं. त्रिपाठी साहब, ये बड़ी बात उन्होंने कही है. जी बिल्कुल, ये बड़ी बात कही है उन्होंने कि सेंसरशिप एकदम ख़त्म कर देंगे और फ्री स्पीच की वकालत करेंगे, जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज के बरखिलाफ. तो ये बहुत बड़ी बात है. और एक चीज़ देखिए, एक बार और सुनते हो आगे क्या कह रहे हैं. Something I know something about. We will not allow that to happen. It will not happen again. Under my leadership, we will restore fair, equal, and impartial justice under the Constitution. तो जस्टिस पॉलिसी को भी संतुलित करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं. तो जो कुछ उन्होंने फेस किया है कहीं ना कहीं अपने ट्रायल के दौरान, तो ये पर्सनलाइज्ड यहाँ पर उनके इमोशंस नजर आ रहे हैं. और देखिए, एक जो आतंकवादी संगठनों पर रोक लगाने की बात, वो बहुत महत्वपूर्ण है. Socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. वो एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जो कलर ब्लाइंड होगी, मेरिट बेस्ड होगी. तो रेसिज्म को लेकर भी उन्होंने अपनी सोच साफ की. It will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. ये भी प्रोफेसर सिंह, मेल एंड फीमेल. तो यहाँ पर एक और संदेश छिपा हुआ है. उन्होंने पहले ही बोला है कि जो फीमेल गेम्स में जो ट्रांसजेंडर घुस जाते हैं और उसकी वजह से उनको डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसको भी हटाने की बात वो पहले कर चुके हैं. ये भी एक नया अमेरिका नजर आएगा. Members who were unjustly expelled from our military for objecting to the COVID vaccine mandate with full back pay. तो कोविड वैक्सीन, अमेरिका का एक बड़ा तबका वैक्सीन की खिलाफत हमेशा करता रहा है और उसकी कंपल्शन को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं. And I will sign an order to stop our warriors from being subjected to radical political theories and social experiments while on duty. It's going to end immediately. Our armed forces will be free to focus on their sole mission, defeating America's enemies. हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं यहाँ पर. Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win,
but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars. चलिए, तो पूरी we दुनिया never get ट्रंप into. लगातार तालियों से उनकी स्पीच पर हॉल जो है वो तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। लोग उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। कई ऐसे मुद्दों पर वो खुलकर अपनी सोच जो है आने वाले कार्यकाल की बता रहे हैं, अपने फैसले जो हैं वो पहुंचा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से स्टैंडिंग ओवेशन लगातार उनकी कही गई बातों को मिल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर श्वेता सिंह लगातार जुड़ी हुई हैं, कर्नल राजीव अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर अमित सिंह हमारे साथ हैं, पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा नाथ जी स्टैंड भी हैं। प्रोफेसर श्वेता सिंह जी, आप सुन रही होंगी ट्रंप की इस स्पीच को, जो कुछ अपने इलेक्शन के कैंपेन में कहा वही कुछ वो एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। उन्होंने बता दिया कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होने वाला, खासतौर से इलीगल इमिग्रेंट्स के मुद्दे को लेकर। जी, आई थिंक अगर आप शब्दों का चयन सुने तो बहुत एम्फेसिस है उनके 3 एस पे लेकर, सॉवरेनिटी, स्केल्स ऑफ जस्टिस एंड सिक्योरिटी। एंड अगर आप ये तीनों एस को देखें, ये इमिग्रेशन पॉलिसी से भी लिंक्ड है। तो उन्होंने बहुत ही मतलब साफ शब्दों में अपने कैंपेन में जो कहा था उसको वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। इट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज अगर आप इसको देखें तो वो रेस पॉलिटिक्स से डेफिनेटली लिंक्ड होगी। तो वो कहते हैं कि हम कलर ब्लाइंड पॉलिसी को अपनाएंगे और सिर्फ मेरिट पे काम लेंगे, बट बोथ द थिंग्स टुगेदर आर कमिंग एंटीथेटिकल। तो पहला नंबर की बात। दूसरी नंबर की बात, अगर पूर्णिमा जी एक बार फिर से सॉरी श्वेता जी, मैं आपको रोक रही हूँ। प्रोफेसर श्वेता, एक बार फिर से सुनते हैं ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं।